with that, I want to move to the next segment where we will talk about the first chair that was made. तो जैसा हमने पहले सेगमेंट में किया था, पीयूष तूने हगने वाला स्टोरी बताया था, तो ऐसे हम लोग अब करेंगे कि पहली बार चेयर क्यों बना होगा, ह्यूमन मेड चेयर. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट सिटिंग ऑन लॉग्स और रॉक्स नाउ. First time somebody deliberately created a chair, what circumstances would those be? And we will again come to which year, around which year it could have been like. But yeah, so let's get on to our story modes. Yes, I think the first chair would have been the necessity to create a first chair would have been comfort, is what I feel. Enhanced comfort. मतलब ऐसे तो log पे या rock पे बैठ ही रहे थे, but हाँ, that can give you that much comfort, right? Armrest नहीं है, ये नहीं है, whatever. एक shape नहीं है, shape of your butt is in a certain way, right? तो I think the first chairs, the necessity for a first chair was comfort driven, is what I feel. Okay, but can you give me a scenario? मतलब मैं रोज कुछ काम करने के बाद बैठता हूँ एक पेड़ के साथ और whatever, राइट, लेकिन वो कि पीठ दर्द करने लगा है मेरा आफ्टर पॉइंट ऑफ टाइम. तो somebody felt कि लेट्स से लोगों ने सोचा कि मेरा जो स्पाइन का जो शेप है और ट्री का शेप इज कम्प्लीटली, आई एम नॉट सेइंग अगेंस्ट ईच अदर, बट नॉट इन सिंक, राइट. ऐसे नीचे बैठ रहा हूँ, हमेशा हार्ड सरफेस पे ही बैठ रहा हूँ. ओके, कैन इट बी अ सॉफ्टर सरफेस? कैन इट द सरफेस इवन इफ इट्स हार्ड, कैन इट बी लाइक दिस कॉनकेव सो दैट इतना सोचा होगा रॉक पे बैठने वाले ने. मैं बोल रहा हूँ कि मतलब कि अलग अलग थॉट्स आया होगा. एंड आप मेरे ख्याल से you're not transporting yourself back in those times. एक बार सोच के देखो, जब भी आपको लगता है अराउंड जिस भी टाइम पे हुआ होगा, what would be the profession, let's say, of that person who would have been? हंटिंग और एग्रीकल्चर, राइट. हंटिंग ही होगा हम तो, बिकॉज यू नाउ सेड 4000, दैट्स द थिंग दैट्स देयर इन माय माइंड राइट नाउ. सो दीस आर हंटर्स, right? They have also now started agriculture. No, they started farming. Farming is 10,000 BC. Acha, no, you said 4 million years or something. 4 million years is when we have started sitting. हाँ, तो उससे पहली चेयर मैं पूछ रहा हूँ, कब तक आपको लगता हाँ, है तो ये? वही मैं बोल रहा हूँ कि आई थिंक द फर्स्ट चेयर वाज क्रिएटेड, मतलब नॉट कि मतलब इतने साल रुके नहीं थे कि फायर होगा तो उसके बाद चेयर वेयर बनाएंगे. चेयर पहले ही बना लिया. ऐसे बाबा कितने टाइम से लेट रहे थे तो बेड बना लिया था क्या पहले ही? हाँ, मतलब ऐसा बेड कब बना? तो फर्नीचर इज वेरी वेरी रिसेंट. नो, फर्नीचर कैन नॉट बी सो. सो सी द चेयर, आप कह रहे हो कि आदि मानव है, आग आई नहीं है, चेयर बना के बैठे हुए. हाँ, मतलब चेयर मतलब नॉट द चेयर दैट वी लुक एट इट राइट नाउ. कुछ एक शेप दिया होगा. लॉक कोई अगर है, लॉक पे बैठे हैं, लॉक को थोड़ा काट के या तो प्रेशर डाल के थोड़ा ऐसे कर दिया कि कंफर्ट एनहेंस हो जाए. दैट कुड बी द फर्स्ट चेयर. इट नीड नॉट बी चेयर विद बैक रेस्ट, आर्म रेस्ट एंड एवरीथिंग. सम फॉर्म ऑफ चेयर. Yeah, some form of human this thing. हाँ, तो वही मैं बोल रहा हूँ. दैट वुड हैव हैपेंड मच बिफोर. Okay. What do you think, Piyush? So I think mostly the chairs would have come into existence post the discovery or invention of tools, when mankind started working around with tools, because to assemble a chair you need tools in whatever simplest of form, but you still need tools and the understanding of how to join two things together. So because a basic chair will also have 4 legs and like a stool, even if you don't have a backrest. So it must have come later than, like, maybe Stone Age. Stone Age is when we started working with tools, I guess. So the concept of chair. Now my story is, so basically it's a very silly story. So I guess a man was expected to do hunting and then come back home and do the minor chores. That ये ला दो, वो वहाँ से ला दो, वो पत्ता तोड़ दो. So sometimes he would be tired and he would just want to like give me 2 minutes of rest, because if he sits down on the ground again बोले अरे ये ला दो. So he's like कि यार एक एलिवेटेड लेवल पे होना चाहिए कि मेरे को पूरा बैठ भी जाऊं और मेरे को उठने में दिक्कत भी ना हो. तो नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन. तो उसने बोला एक कुर्सी बना लेता हूँ मैं अपने लिए. वो कुर्सी का एक और फायदा होगा कि उसको मैं स्टूल की तरह यूज करके ऊपर की चीजें भी आराम से निकाल लूंगा. तो उसने बोला यार ये तो मल्टीटास्किंग स्टार्टेड लॉन्ग मेरा टाइम. यूरेका मूवमेंट है. काफी क्रेजी. सही है. बहुत सही. सो मेरी स्टोरी ये है यहाँ पे कि सो आया होगा आई थिंक आफ्टर फार्मिंग.
सो बिकॉज उसके बाद इतना टाइम था हम लोगों के पास कि हम लोग अनाप शनाप चीज़ों पे टाइम स्पेंड कर सके, सोच सके चीज़ों के बारे में। उससे पहले तो आवर माइंड्स वर ऑक्यूपाइड विद सर्वाइवल, राइट? सो मेरे ख्याल से फार्मिंग के बाद आया होगा, सो मे बी 8000 BC टाइप्स मे बी, वेयर माई सिनेरियो, माई स्टोरी इज कि हम 3 लोग हैं, ठीक? फिर से हम 3 लोग, तीनों फार्मर्स हैं। अच्छा, अभी बंधन नहीं है, अभी फार्मर्स है। इवॉल्व हो गए ना बाबा, इवॉल्व हो गए। अच्छा, इवॉल्व हो गया। तो फार्म के एकदम हमारे जहाँ पे तीनों फार्म मिलते हैं ना, वहां पे देर आर, केले वाला फार्म नहीं है ना, नॉर्मल कैरी फार्म। सबका अलग अलग है। अच्छा, अलग अलग फार्म। इसका जैसे है फ्रूट्स का, फ्रूट्स का, ओके। केला भी फ्रूट है, हाँ करेक्ट, तो केला भी है, ठीक है, कोई सा भी फ्रूट। सब फ्रूट्स है इसके पास, मेरे पास सब वेजिटेबल्स है, अच्छा, और आपने पाली हुई है मुर्गियाँ। अच्छा, चलो ठीक है, मतलब नॉन वेज फार्म है मेरा, ठीक है, चलिए। पोल्ट्री फार्म, बट एनीवे, सो अब फार्म का क्या है कि फार्म में करते करते हम थक जाते हैं काम करते करते, एंड देयर इज प्लेस टू सिट, जो प्रॉपर सिट है, बैठने की जगह पानी भरा रहता है फार्म में, यू कैन नॉट रियली सिट ऑन द ग्राउंड। तो साइड में ना 2 पेड़ कटे हुए हैं, और उनका आधा जो ट्रंक है, यू कैन सिट देयर। सो काम करने के बाद बाबा जब भी आते हैं वो देखते हैं कि पीयूष और रमन ऑलरेडी बैठा हुआ है। मैं थकता तो मैं रहता हूँ, मुर्गियों के पीछे मैं दौड़ रहा हूँ, तुम लोग तो छोटा मोटा सिर्फ पेड़ में बीज बीज डाल रहे हो। अरे थक सबसे ज्यादा जोना भी मैं, तो पड़ता है, तो मैं थक से खेत जोना आसान बात है बाबा, आपको क्या लग रहा अरे है? मुर्गी के पीछे दौड़ने पोल्ट्री से तो फार्मिंग अच्छा में क्या है। अंडा लेके आप पीछे भाग दो, अंडा देके अंडा दे दो। मुर्गी भाग जाएगी तो मुर्गी को रोकना पड़ेगा ना। मुर्गी फार्म में रहती है, बैरिकेडेड रहता है बाबा, बैरिकेड उसमें भी तो हो घूमती जाएगी। रहती है। घूमने दो। अरे पकड़ना पड़ेगा ना। तो पकड़ के रखो क्या मुर्गी को? अब एक पेड़ पकड़ना और मुर्गी पकड़ना, देयर इज अ पेड़ पकड़ना डिफरेंस। नहीं है, पेड़ से खींचना है, नहीं यार, तुम कंटिन्यू कर। कुछ भी। सबसे ज्यादा थक मैं रहा हूँ भाई मुर्गी के पीछे। लेट्स आप मुर्गी के पीछे भाग रहे हो, मेरे को तो आपके ईमान पे शक है। मुर्गी के पीछे क्यों भाग रहे हो बाबा? आई एम नॉट, मतलब वो अलग ही कैटेगरी बन जाएगा, फैसिनेटेड बाय मुर्गी वाला, ऐसा नहीं है। व्हाट आई एम सेइंग कि तुम दोनों से मैं ज्यादा थक रहा हूँ। सही है, आप थक रहे हो, हाँ, तो आप तुम- बहुत ज्यादा थक रहे हो, आपका एज भी ज्यादा है। हाँ। वापस आते हो जब, ओके, हाँ। तो वो आपको नहीं मिलता। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, आपने अपना टाइमिंग चेंज करने की कोशिश किया, जब भी आप आ रहे हो आप देख रहे हो रमन और पीयूष बैठे हुए हैं, तो फिर आपने कहा ये दिस इज नॉट अ सोल्यूशन टू इट, ओके, आई एम गोइंग टू बिल्ड अ चेयर। अच्छा, मैंने ही बिल्ड किया। अच्छा, तो अच्छा, आपने हिस्ट्री का पहला चेयर आपने बिल्ड किया ओके, टू फाइट अगेंस्ट दिस, और आप चेयर पे बैठ के मुर्गियां देखते थे फिर अपनी। बढ़िया। आई थिंक ये मुझे अच्छा लग रहा है विजन, एक मतलब मैं एकदम मुर्गियों के बीच में बैठा, वो ये टेनिस के अंपायर जैसा ऊपर एलिवेटेड पोजीशन पे। अब मुर्गी पकड़ोगे कैसे? अब तो बैठ गए आप। अरे ठीक है, वो मुर्गी पकड़ना हो जाएगा, तो सब कुछ मिला मत दो बे। इसने मुझे थोड़ा एलिवेटेड लेवल पे बैठाया है। नहीं, तो मैं इसमें मुझे पॉइंट first- बता रहा हूँ। मुझे फर्स्ट इन्वेंटर बताया है, एक मुझे एक ड्रीमी सिचुएशन दिया है कि आप पहले चेयर इन्वेंटर हो। थोड़ा सा तो मुझे अच्छे फील करने दो नहीं ना। नहीं, अच्छा अच्छा, मैं बता रहा हूँ, उसी का एक्सटेंशन ही बता रहा हूँ। हाँ। तो आई गेस हेंस एक और चीज था कि हेंस चेयर मतलब HENCE। HENC। और हेंस, अच्छा वो ये है मुर्गी वाला हेंस नहीं। अच्छा, तो मेरे को लगता है आदमी ने कुर्सी पे जब से बैठना शुरू किया तो उसने चिंतन शुरू किया। चिंतन, करेक्ट, एब्सोल्युटली, आई आल्सो फील सो। सोचना तब से शुरू किया। सोचना तो उससे पहले भी शुरू कर किया दिया होगा, बट और चीज हो गई। Yeah. हाँ। चिंतन जिसको कहते हैं। आई थिंक जब से बैठना शुरू किया तब से ही वो चालू हो गया था कि यू आर एबल टू थिंक अबाउट थिंग्स इन अ डीपर वे बिकॉज यू आर मोर रिलैक्स्ड। और चेयर आने के बाद वो, और इट सर्व्ड एज अ कैटलिस्ट, दैट्स व्हाई आई वाज सेइंग चेयर इज अ पार्ट ऑफ एवोल्यूशन दैट इज नॉट गेटिंग टॉक्ड अबाउट इनफ, बट इट हैज लेड टू नहीं नहीं, मल्टीपल किसने? ग्रेट मोदी जी से थिंग्स। पूछो, राहुल गांधी से पूछो, हाँ, उस कौन चेयर कह रहा पे है कि भी चेयर की आएंगे। बात नहीं होती? उस पे आते हैं, चलो अब आगे ही चलते हैं। इनफैक्ट लेट्स